Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see Standard 12 Economics chapter number 6 Unemployment. As you all know, we have already seen many parts of this chapter. So today we are here to see the part 6 of the chapter in a very detailed manner. So students, let us move on with a short summarization of the portion from the previous video that we have seen. Previously, we have seen the 5 points from the causes of unemployment. In that, we have seen the lack of vocational education, lack of manpower, inefficiency of public sector, negligence of the agriculture sector and the low mobility of the worker in a very detailed manner. So students, let us have a brief discussion of this portion in a very detailed portion. So lack of vocational education, that we have seen that our present Indian economic system of education is in that manner that students are getting educated, labors are being generated, but that labors are not able to work in the changing atmosphere. As you all know, the change of the technology and the portion of the amendment of the day-to-day life is seen in a much more manner, but still the labor are not able to work in that situation with the changing factor, which shows the ineffectiveness of the educational system. So due to this only, many of the educated people are also not getting the work in the present Indian economic system. So this was the first point. Second, we have seen the lack of manpower planning. You know that currently our educational supply is constantly on one portion or one type of trend oriented development of the labor has been seen up, but this similarity labor supply will not fulfill the other sectors of the need of the labor. So due to that, our man planning of the portion in which manner the education should be provided, that different type of labor will be generated, that is not seen up in a very detailed portion. So due to that, what is happening, the high profile or high educated people such as doctor, engineer, they are not getting the suitable job in India, due to which they are migrating to the other country. So due to this reason, you can say that the lack of the manpower is being seen up in India in the present economic policies. Rather than that, if you are seeing in the British rule time, the drain of the gold, which means the gold from the India were be taken up and kept in the Britain. So this was considered as the drain of the gold. But now the drain of the brain is being seen in India. Why? The intellectual people, after getting educated, they are getting migrated to the foreign country. So this drain of brain is happening due to the lack of the manpower planning. Next, we have seen the inefficiency of the public sector. If you are seeing, the people are more oriented in the after the independence time, in the Asian time, the people, means the government people, were most oriented for the public sector. They considered that the public sector can do the welfare to the general people, so that they emphasized more importance on the public sector. They avoided, neglected the private sectors. The importance that was given to the public sector and the investment created an immense number of the public sector. Apart from creating immense number of public sector, still as they were considered, the estimated employment generation was not being seen up due to the low productivity of the public sector. As a result, the development of the employment was being seen up in the private sector, but as they were neglected, due to that they were also not able to generate more employment generation, and due to that the unemployment was seen. So this thing consider us that the public sector was given more importance, but it was not able to prove itself as the estimation was done for its successfulness.
After we have seen the agriculture sector was neglected by the government. So in the time of the independence or after independence, you know that India was an agriculture country. Still India is an agriculture country. So most of the population are situated in the rural area. As the most population is situated in the rural area, they are oriented with the agriculture sector. As the other development of the labor portion has not been seen up still today in the rural area, so due to that they are connected with the agriculture. As the government neglected the agriculture sector and given the importance to the service and the industrial sector, the agricultural sector was not able to develop itself as it was being considered, and due to that what happened, the labor were being able to face the high rate of seasonal and disguised unemployment. Rather than that, still the lack of infrastructure provided, and rather than irrigation facility, uncertain monsoon and other uncertainties made the agriculture sector's development more poor considered to the other sectors. So this was one type of reason for the creation of the unemployment in the Indian economy. After that, we have seen the low mobility of the worker. The low mobility of the worker, as you are born and brought up from the urban area, and if you are given the whole facility, then you will not be able to comfort yourself in the rural area. So due to that, the educated people, the high skilled people prefer to remain unemployed but are not ready to move to the rural area. And due to this also, one reason is this, and the other reason is social portion, family portion, and rather than that the surrounding religion, casteism, these all things are playing a vital role in the low mobility of the laborers. So due to that, what is happening, the unemployment is seen up more in the Indian economy. So up till this we have seen up in a very detailed manner. So now today we are going to see the furthermore reasons and the measures to reduce the unemployment point. So let us move on with the today's portion from the point to point explanation from the textbook in the further video. So students, let us move on with the today's portion. So today we are going to start from the point lack of infrastructure facility. So I'm going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed manner. In rural areas, because of lack of infrastructure facility, unemployment has become a major problem. In rural area, lack of transportation facilities, lack of proper road, lack of education, health and electricity facilities are the reason of low generations of employment. As such, in rural area for industry, there are availability of laborers at low wages and easy availability of raw material for agro-based industries, but due to lack of continuous and required electricity, industrialists do not wish to establish industries in rural area. As a result, new employment cannot arise and unemployment exists. रूरल एरिया मतलब विलेज. इफ यू आर कंसिडरिंग विलेज में आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इतना अच्छा नहीं मिलता है, इसीलिए कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम रूरल एरिया में देखा जाता है. रूरल एरिया में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होता है. इवन अगर आप देखो तो गवर्नमेंट के बस भी 1 या 2 आते. मेरी ही विलेज की बात करो तो दिन में 2 ही बार बस आता है. सो इस तरीके की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देखा जाता है. लैक ऑफ प्रॉपर रोड प्रॉपरली बिल्डअप नहीं किए होते, कच्चे रोड होते. लैक ऑफ एजुकेशन, जितने अच्छे एजुकेशन हमें अर्बन एरिया में मिलता है उतना कहीं ना कहीं रूरल एरिया में नहीं मिल पाता. इतने प्रॉपर टीचर्स और टाइप ऑफ स्कूल्स हमें वहाँ अवेलेबल नहीं होते, तो लैक ऑफ एजुकेशन देखा जाता है. हेल्थ और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी कहीं ना कहीं वहाँ पे कम होता है. सो ये सारी रीजन के वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम, यानी एम्प्लॉयमेंट की जो जनरेशन होती है वो वहाँ पे कम देखा जाता है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखा जाता है. एज सच रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज भी लोग लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे लेबर्स लो वेज में काम करने के लिए रेडी होते. हमारे पास मटेरियल्स इतने अच्छे मिल जाते, बट हमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस और जितना इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है उतना रूरल एरिया में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेशन नहीं मिल पाता. इस रीज़न की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, उनकी इंडस्ट्री जो है रूरल एरिया में डालना पसंद नहीं करते. और एज अ रिजल्ट क्या होता है, तो एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट, नया एम्प्लॉयमेंट तो होता ही नहीं, ऊपर से जो एग्जिस्टिंग पीपल है उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम फेसअप करना पड़ता है. सो लेट अस सी द फर्दर पोर्शन.
Apart from the above reason, in India, lack of national employment policy, lack of conducive environment for development of industries and trade, underutilization of natural resources are also responsible for increase in unemployment. इसके अलावा ऊपर जो रीजंस बताए गए, उस रीजन के अलावा इंडिया के अंदर आज भी नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज में बहुत कमी देखी जाती है। कंडेंसिव एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट यानी जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री और ट्रेड दोनों को कंटिन्यूटी के साथ डेवलप होने का चांस कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता। उसके अलावा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी हमारे पास जितने नेशनल रिसोर्सेज मिलते हैं उसकी जितनी यूटिलाइजेशन होना चाहिए उसकी यूटिलाइजेशन उतना नहीं हो पाता, यानी लैक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे रिस्पॉन्सिबल रीजंस है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो है आज भी रूरल एरिया में कम देखने को मिलता है, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम देखने को मिलता है और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। सो इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की कमी होने की वजह से भी रूरल एरिया में देखे जाते। सो यहाँ खत्म होता है कॉजेज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, क्या रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट के, वो यहाँ पे खत्म होता है, यानी 10 पॉइंट्स के अंदर ब्रीफ में हमने डिटेल में देखा। नेक्स्ट हम देखने वाले मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। हमें अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसकी क्या मेजर्स है वो नीचे दिया गया है। लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। So I'm going to read it out, listen it out carefully. After understanding the extent and the reasons of unemployment in India, it is clear that the problem of unemployment is becoming serious day to day. From its reason, it will be easier to find out its solution. The problem of unemployment is not only economic, it also gives rise to social, moral and psychological issues. From political point of view also this problem is serious. That is why in India right from the first 5-year plan one major objective is to reduce unemployment. Especially from the 5th and 6th year plan, the prime objective is to reduce unemployment. In the 8th 5-year plan, it was thought to make right to unemployment as fundamental right, and change could be made in constitution, but it could not be materialized. But it is clear that it provide appropriate employment opportunity is the prime responsibility of our country. So measures to reduce unemployment की बात करते तो इंडिया में कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रीज़न है ज़्यादा बढ़ने का, और रेदर देन दैट कौन से प्रॉब्लम की वजह से बढ़ रहा है, और ये कितना सीरियस है डे टू डे लाइफ में इंडिया में कितना सीरियस इशू बन रहा है, ये सारी चीज़ें हमें कॉजेज़ को पढ़ के अच्छे से पता चल गया। इवन इसके रीजंस की वजह से हमें इतना इजीली इसकी सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसका भी आइडिया आ जाता है। अगर हम प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते ये सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं, बट इसके साथ सोशली लोगों की लाइफ, मोरली और साइकोलॉजिकली भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलता है। इवन पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से देखें तो अभी ये प्रॉब्लम बहुत इशू और सीरियस वाला इशू माना जाता है। इसीलिए इंडिया के अंदर राइट फ्रॉम फर्स्ट 5-year प्लान, यानी जैसे इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद फर्स्ट 5-year प्लान से ही हमारा मेजर एक ऑब्जेक्टिव इवन इंडिया को डेवलप करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है, ये देखा गया। बट स्पेशली 5th और 6th प्लान की बात करें, प्राइम यानी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही ऑब्जेक्टिव है, ये भी माना गया। 8th 5-year प्लान की बात करें तो उसमें तो ये माना गया हर एक इंसान का फंडामेंटल राइट है, यानी वो इंडियन सिटीजन होने का हक होने के बावजूद उसका एक ये हक है कि उसे जॉब मिलना चाहिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस रेगुलरली किया जा रहा है इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही एक सीरियस इशू की तरह देखा जा रहा है। बट ये बहुत क्लियर हो गया कि अप्रोप्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है हर एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो करना चाहिए हर एक कंट्री के गवर्नमेंट को। सो इसके वजह से कुछ सॉल्यूशंस यानी किस तरीके से ये प्रॉब्लम को हटाया जा सकता है उस सॉल्यूशन
सॉल्यूशन के ऊपर डिटेल में देखा गया. सो लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. सो फर्स्ट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉलोइंग स्टेप कैन बी टेकन. फर्स्ट इज पॉपुलेशन कंट्रोल. सो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमें नीचे दिए गए स्टेप्स लिया जाना चाहिए. तो फर्स्ट ही उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल है. ऑब्वियसली कॉजेज तो देखा गया है, उसका ऑपोजिट उसका सॉल्यूशन होगा. पॉपुलेशन जो है हाई होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको कंट्रोल करो तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा. सो फर्स्ट पॉपुलेशन कंट्रोल. आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली. The high population growth rate of India has increased the problem of unemployment and made it more serious. Because of the fast population growth in country, on one hand, the number of laborers demanding job is increasing, and on the other hand, due to slow economic growth, appropriate number of employment opportunities cannot be created. As a result, unemployment is increasing. If in India problem of unemployment is to be solved, then the effective steps for population control must be taken. With that, the rate of the population growth will come down and the high rate of the labor supply will reduce. So the number of job seekers will reduce, and on the other hand, because of population control, resources will become surpluses. As a result, rate of capital investment and employment opportunity will increase. With the population control, in long term, the productive age group 15 to 64 years can be placed appropriately. सो पॉपुलेशन कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं, सो इंडिया का हाई पॉपुलेशन ग्रोथ के वजह से ही प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है. इसी की वजह से वो सीरियस हो रहा है, ये भी बोला जा सकता है. जितना पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उतना लेबर सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, और इस रीज़न की वजह से जितना लेबर सप्लाई हो रहा है उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है. सो जितनी फास्ट वे में पॉपुलेशन ग्रोथ देखा जा रहा है उतना ही लेबर की डिमांड जॉब के लिए इंक्रीज होता जा रहा है, और उसके साथ साथ हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही स्लो देखा जाता है. इस रीजन की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जितना क्रिएट होना चाहिए लेबर सप्लाई के हिसाब से उतना नहीं हो पा रहा है. एज ए रिजल्ट आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है. सो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या इफेक्टिव स्टेप लेना चाहिए? तो सबसे पहले हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए. अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन कम हो जाए, यानी लोगों की पॉपुलेशन काउंटिंग कम हो जाए, इसका मतलब लेबर सप्लाई भी कम हो जाएगा. लेबर सप्लाई कम होगा तो जॉब जितने लोग ढूंढ रहे उनमें कहीं ना कहीं कमी देखी जाएगी. सो एज ए रिजल्ट एक साइड में पॉपुलेशन कंट्रोल होगा और एज ए रिजल्ट क्या होगा, सरप्लस रिसोर्सेज हमारे पास हो जाएंगे और हमारा रेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगा. सो इस तरीके से कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारा जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 टू 64 को हम प्लेस अप्रोप्रिएटली करके कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को हटा सकते. इवन इन चाइना पॉपुलेशन इसी तरीके से बहुत बढ़ता जा रहा था और एज ए रिजल्ट चाइना के गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर कोई भी एक या दो बच्चे से ज़्यादा बच्चे करे तो उनकी सिटीजनशिप कैंसिल कर देगा और उनको बेसिक फैसिलिटी जैसे कि गैस, लाइट, ये सारी चीज़ें उनसे छीन लेगा. देखो इस तरीके का स्टेप लिया गया और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ और चाइना की आज जो है डेवलपमेंट अच्छी देखी जा रही. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल की काफ़ी सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट को लाना चाहिए. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली. One of the constructive solution of reducing unemployment is by increasing the rate of economic development. In the initial year of planning, the rate of economic development used to be as low as 3 to 3.5. If economic development is continuously increased at a higher rate, then employment opportunity can be developed at a higher rate and the problem of unemployment can be solved. For that, coordinating various sectors of economic efforts should be made to increase capital investment between public, private and cooperative sector. In agriculture sector, irrigational facilities and other required facilities should increase and agriculture growth rate should be kept high. Effort should be made so that advantages of green revolution should be reaped by every state, so that by way of achieving high economic development, employment opportunities should increase and problem of unemployment could be solved. So one of the constructive solution,
अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का कंस्ट्रक्टिव यानी डेवलपिंग सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज करना चाहिए, उसका रेट इंक्रीज करना चाहिए। इनिशियल ईयर ऑफ प्लानिंग में देखा गया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही कम था, 3 to 3.5% ही देखा गया। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज किया जाए तो हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हाई रेट में डेवलप होगा और उसमें जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसे सॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरियस सेक्टर्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इकोनॉमिक के अंदर और एफर्ट्स लगाना पड़ेगा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पब्लिक, प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर्स को भी डेवलप किया जाए और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इरिगेशनल फैसिलिटीज और रेदर देन दैट जितने रिक्वायर्ड फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड किया जाए ताकि एग्रीकल्चर ग्रोथ देखा जाए। जो एग्रीकल्चर ग्रोथ हाई होगा तो एफर्ट्स उसमें जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के लगाए जाए और अगर ग्रीन रेवोल्यूशन सारे कंट्री के थ्रू यूज किया जाएगा यानी कंट्री के अंदर सारे स्टेट्स के थ्रू यूज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम अचीव कर सकते हैं। हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज हो सकता है और एज अ रिजल्ट क्या होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी इकोनॉमिक की डेवलपमेंट और ग्रोथ रेट बढ़ने की वजह से हमारा जो है जो अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये बढ़ेगा और एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट कम होता हुआ नजर आएगा। बट उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर नहीं बट सारे सेक्टर को उसके अंदर काम करना पड़ेगा, ये भी बोला गया है। नेक्स्ट इट इज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। It is seen that during planning, special emphasis is given to economic development. Like from the second 5-year plan, special importance was given to the development of public sector and as a key of basic industries, capital intensive industries was developed. For starting strong foundation of industrialization it was necessary, but in present situation employment oriented planning is very important. For that state has encouraged consumer goods and labor intensive industries, small and medium scale industries and business and trade, animal husbandry, dairy development. Because of all this, industry requires less of capital and generate more employment. With the establishment and development of these employment oriented industries, the production of consumer goods will increase, employment will increase and economic stability will also achieve in construction sector through employment oriented planning. More employment can be increased. State can also coordinate between the capital intensive and labor intensive production technique and more emphasis should be given to labor intensive production technique so that the unemployment problem can be solved. So employment oriented planning आपने देखा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टाइम में जो प्लानिंग दिया गया था उसमें स्पेशल एम्फसाइजिस किस पे किया गया था तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दिया गया था। उसी तरीके से सेकेंड 5-ईयर प्लानिंग में हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया तो पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट में दिया और एज ए की उसका रिजल्ट एज ए की क्या हुआ बेसिक इंडस्ट्री और कैपिटल इंटेंसिव मेथड को डेवलप किया गया। हाँ चलो इंडस्ट्री को फाउंडेशन यानी जब कोई चीज़ शुरू करते उसको स्ट्रांग बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ी, वो हम मान लेते और नेसेसरी भी था। बट प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम बात करते तो अब एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग कहीं ना कहीं करना चाहिए। हर एक स्टेट में इवन एंकरेजमेंट मिलना चाहिए स्टेट कंज्यूमर गुड्स और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए, जैसे स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को एंकरेज करना चाहिए। बिजनेस और ट्रेड में एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डेवलपमेंट को भी हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन और एंकरेजमेंट देना चाहिए। ये सारी चीज़ों की वजह से इंडस्ट्री में क्या होगा लेस कैपिटल चाहिए होगा और मोर एम्प्लॉयमेंट डेवलप होगा और एज ए रिजल्ट क्या होगा एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में ज़्यादा दिए जाने चाहिए।
अगर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी उसके साथ इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, और एज दैट क्या होगा, एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखा जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन भी होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, और एज ए रिजल्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखा जाएगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग ही करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो। स्टेट को भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए। सी फॉर सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव मेथड ही नहीं बट लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स भी हर चीज़ में यूज होना चाहिए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। सो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग होना चाहिए। सो आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट डिस्कशन ऑफ द पोर्शन दैट वी हैव सीन टुडे. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have completed the causes of unemployment and even we saw 3 points from the measures to reduce the unemployment in a very detailed manner. So let us have a short portion of the summarization, that portion that we have seen today. So lack of infrastructure facility. Causes में हमने देखा lack of infrastructure facility. You know that rural area comparative to the urban area. Rural area में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आज भी डेवलप्ड नहीं है। प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, रोड्स नहीं है, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं देखे जाते। एज अ रिजल्ट क्या होता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी तो करना ही नहीं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी उस पोर्शन में कम देखा जाता है। इवन वहां पे लो रेट में काम करने के लिए लेबरर्स रेडी है, रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल्स भी हमें इजीली इंडस्ट्री के लिए मिल सकते, बट फिर भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर वे में कंटिन्यूअसली ना मिलने के वजह से इंडस्ट्रीज के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो वहां पे अपना इंडस्ट्री डालने के लिए रेडी नहीं है और एज अ रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट वो लोगों को कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कम होने के वजह से रूरल एरिया में आज भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। सो इस पोर्शन पे हमने जो है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंप्लीट किया। नेक्स्ट वी हैव स्टार्टेड द मेजर्स टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। मेजर्स टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते, इनिशियल पोर्शन से ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, तो अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना। तो स्टार्टिंग आफ्टर द ब्रिटिश रूल स्टार्टिंग पोर्शन से ही मेजर ऑब्जेक्टिव में ये देखा गया, बट 5th 5 ईयर प्लान और 6th 5 ईयर प्लान में प्राइम ऑब्जेक्टिव अनएम्प्लॉयमेंट का देखा गया। वही 9th और 10th में अगर देखो तो ये फंडामेंटल राइट बन गया, कहीं ना कहीं हर सिटीजन का हक है, अगर वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करता तो उसे जो है एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। इस तरीके से कंटिन्यूअस जो है ट्राई कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू देखा गया है, बट हमने कॉजेज देखा, उसके बाद हमें ये आइडिया आ गया है कि कहाँ कहाँ लैकिंग पोर्शन है और किस तरीके से इफेक्टिव वे में उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने हमारी गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिया, इवन हम क्या मेजर्स ले सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए, उस पोर्शन के ऊपर डिटेल में देखा था। सो फर्स्ट पोर्शन हमने देखा कि पॉपुलेशन कंट्रोल। सो सबसे फर्स्ट पोर्शन हमने इवन कॉजेज में ये देखा, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जिस तरीके से इमेंसिव वे में डेवलप हो रहा है यानी ग्रो हो रहा है, उस वजह से लेबर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। लेबर सप्लाई तो इंक्रीज हो रहा है बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लोली देखा जा रहा है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखा नहीं जाता है। इस रीजन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि पॉपुलेशन कंट्रोल अगर किया गया, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, तो पॉपुलेशन कंट्रोल होने के वजह से जो लेबर सप्लाई है वो डिक्रीज होगा, जॉब सीकर की काउंटिंग कम होगी और हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो सरप्लस लगने लगेगा और एज ए रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है लोगों को अच्छे से मिलेगा और अदर देन दैट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी कम होता हुआ नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू कि चाइना के अंदर पर्टिकुलर ईयर्स के पहले जो है पॉपुलेशन ऐसे ही एक प्रॉब्लम की तरीके से देखा जा रहा था। उस टाइम पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, डू यू नो दैट, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अगर 1 या 2 बच्चों से ज्यादा हुआ तो उस फैमिली को गवर्नमेंट के तरफ से मिलने वाली सारी फैसिलिटीज कैंसिल किया जाएगा और उनको सिटीजनशिप से भी रद्द किया जाएगा। तो इस तरीके से वहां पे इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया कि पर्टिकुलरली 1 और 2 ईयर्स के अंदर ही पॉपुलेशन कंट्रोल में देखा गया है। इवन हम जो टेबल्स देखते हैं उसमें देख रहे हो कि हमसे भी चाइना
चाइना अच्छा अभी कर रहा है। सो इस तरीके का पॉपुलेशन कंट्रोल वाला कोई टॉपिक देखने को मिलना चाहिए। सेकेंड, इंक्रीज इन द रेट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इनिशियल पोर्शन में वो जो है कहीं ना कहीं 3.5% तक देखा गया, बट अब हम कहीं ना कहीं जो है डेवलप हो सकते थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहिए। जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, रेट ऑफ इंक्रीज उसमें डेवलप होगा, उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ता जाएगा। जितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ता जाएगा उतना अनएम्प्लॉयमेंट का पोर्शन कम होता नजर आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब मल्टीनेशनल और मल्टी सेक्शनल डेवलपमेंट माना जाता है। हर सेक्टर में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इस रीजन की वजह से कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा। सो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग की अगर हम बात करें तो इनिशियल स्टेज में जब डेवलपमेंट यानी इंडिपेंडेंस के बाद डेवलपमेंट देखा गया था, उस टाइम पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। इस रीजन की वजह से पब्लिक सेक्टर को ज्यादा ध्यान दिया गया और उस एज ए की जो है हमने बेसिक इंडस्ट्री और रेदर देन दैट कैपिटल इंटेंसिव मेथड को फॉर्मुलेट किया, यानी उसको ज्यादा प्रमोट किया। हाँ ठीक है, चलो इंडस्ट्रियल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यानी बेसिक से ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने ये सब किया, बट अभी प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो हमें एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लान करना चाहिए। इवन भगवती एंड वेंकटरमणन कृष्णन के जो कमेटी ने जो रिसर्च किया उसमें ये बोला भी था कि लेबर इंटेंसिव मेथड कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। एज ए रिजल्ट क्या होगा, अगर लेबर इंटेंसिव मेथड होगा तो प्रोडक्शन तो होगा, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का जनरेशन देखा गया तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा। सो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें जो है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग देखने को मिलना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। सो इस 3 मेजर्स के हेल्प से कहीं ना कहीं हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। और भी पॉइंट्स है बट वो हम कब देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.